transformation is non-linear and it has inverse. Inverse of a linear transformation. So if your map is bijective, then we say that it has inverse, है ना? And if it is linear map, we say it is non-singular. इस पे linear map के लिए we use the term non-singular. So a linear map T U to V is non-singular if it has inverse, and that means if it is bijective. Bijective का मतलब हुआ कि it has an inverse. 1 1 2 1 1 2 है, it has an inverse. ये सब non-singular word use करते हैं. So this non-singular map, this is also a linear map. If T is linear, we have a theorem 4.4.3, page 123. Let T U to V be a linear map then T inverse be a linear map, be a non-singular. Non-singular. Be a non-singular linear map. Then T inverse from V to U. V to U This is also linear. Linear and bijective. Linear भी होगा और वो भी bijective होगा. यानी कि इनवर्स का भी इनवर्स निकाल लेंगे आप. इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा? क्या आएगा? द टी मैप इटसेल्फ, है ना? हाँ, यही मैप आ जाएगा. So we will prove it. देखिए, proof is quite simple because you have to show the map is linear. Linear के लिए you know क्या property show करनी होती है हमें? T of U plus V के लिए हमें क्या show करना होगा यहाँ पे? T inverse U plus V is equal to T inverse U plus T inverse V, and T inverse alpha V is equal to alpha T inverse V. है ना? ये हमें show करना है. So that means we prove T inverse, क्योंकि inverse का domain V है, so we will prove these two properties. V2 and T inverse alpha V1 is equal to alpha T plus V. ठीक है, चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं. सो लेट, बिकॉज लीनियरिटी प्रूव करनी तो हमने माना लेट टू एलिमेंट्स V1 V2 belongs to to prove the linearity of T inverse I will take the linearity of T, है ना? जो हमें डेटा गिवन है इस डेटा का यूज करना है. तो लेट V1 V2 belongs to V, और अगर ये V1 V2 है तो इनकी कुछ इमेज होगी. हमने मान लिया लेट T inverse V1 is U1 and T inverse V2 is equal to U2, because it's a map. तो मैप में हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होती है. सपोज U1 U2, बट T is also 1 1 on 2. ये क्यों है? ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि T is 1 1 on 2 since T is bijective. Bijective means 1 1 on 2. What we have? V1 is TU1 and V2 is TU, है ना? क्योंकि अगर मैप बाइजेक्टिव है आपका तो क्या ले सकता हूँ मैं कि वहां पर जो है हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी. तो जो V1 होगा, है ना, ये जो हमने ये किससे लिखा है? ये इससे नहीं, ये यहाँ से लिखा है कि मैप आपका ऑन टू है. तो अगर ऑन टू है तो हर V1 का प्री इमेज होगा TU1 एंड एवरी V2 हैज सम प्री इमेज TU. ये तो होगी. So V1 plus V2, है ना, अगर इन टू का सम ले तो ये क्या हो जाएगा? T of U1 plus
T of T of U2. ये V1 is TU1, V2 is TU. This will be equal to how much? Because T is linear. है ना? Yes, sir. Since T is linear, I can write this. Now, if V1 plus V2 is equal to TU1 plus U2, or T is linear, है ना? Now, can I write now T inverse? भाई T कैसा मैप है? बाइजेक्टिव मैप है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? Yes, इनवर्स sir. एग्जिस्ट करेगा तो आई कैन टेक T इनवर्स ऑफ दिस. तो अब T इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हाउ मच इट विल बिकम? U1 U1 plus plus U2. V2, है ना? Because T is linear, this happen, and since T is bijective map, तो T का T inverse है, so I can take T inverse on the left hand side. This will become U1 plus V2. और U1 कितना था आपका? T inverse V1 plus T T inverse inverse V2. V2, है ना? U1 U2 तो ये था, इसका कुछ इमेज थी कि हमने मानी थी. So one condition is done. Similarly, Alpha. alpha V1 ले लीजिए आप. Alpha V1, this I can write alpha TU1. This I can write T of alpha U1, है ना? Now T is a bijective map, so I can take T inverse. So you can take T inverse on left hand side. It will become alpha U1, and alpha U1 is how much? Alpha T inverse T inverse. V1. So these two conditions are done, implies that T inverse is linear. है ना? अब बाइजेक्टिव भी शो करना है आपको कि दिस T इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव, यानी कि T इनवर्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. So for one oneness, bijective means for one one and onto. So for one oneness of T inverse. One oneness के मैंने आपको क्या बताया था अगर याद हो? Fx is equal to Fy lies that x equal to. अगर ये आप शो कर दें तो it means map is one one, है ना? ये one one की definition है. So what I will take? T inverse V1 is equal to T inverse V2. Okay? और T inverse V1 कितना है? U1 है तो. U1, sir. So I can write U1 is equal to U. अब अगर U1 is equal to U2 है तो by the definition of map I can write this, है ना? ये डेफिनेशन होती है फंक्शन की. फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? Each element has a unique image. तो अगर आपके पास TU2V फंक्शन है तो अगर U1 is equal to U2 है ना? यानी कि डोमेन में सेम एलिमेंट्स हैं ये, तो इनकी इमेज क्या होगी हमेशा? Same, sir. है ना? ऐसा नहीं होगा कि टू एलिमेंट कि सेम एलिमेंट हो इमेज टू हो जाए. इट इज नॉट, फंक्शन ही नहीं होगा. तो अगर U1 U2 है तो T तो इक्वल होगा ही होगा. ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. और TU1 इज इक्वल टू TU2. TU1 इज हाउ मच? V1. कितना था? V1. V1. ये था. Yes, sir. दिस इंप्लाइज दैट V1 इज इक्वल. V1 equal. तो यहाँ से तो आपके पास आ गया वन वननेस, है ना? वन वन Yes, की sir. डेफिनेशन implies that T inverse is 1 1. Ontoness के लिए अब ontoness हम क्या शो करते हैं? ontoness भी आपका एग्जिस्ट करेगा, है ना? If Yes, sir. U belongs to U, तो T इनवर्स है from V to U. तो अगर मैं कोई U onto में शो करना है, every element in codomain has a free image, है ना? ये शो करना है. That means range set is equal to codomain. So if U belongs to U, then you For know every TU is equal yes, to V always, yes, है ना? Since T is on 2, तो T on 2 है तो TU is equal to V, है ना? ये क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? Belonging to V, है ना? yes. ये इसमें जाएगा. And T inverse V is how much? U. U. तो इसका मतलब कि हर U belongs to U के लिए T inverse V एग्जिस्ट In- करेगा.
this implies that map is on. Okay, so here both the things are satisfying. Map is 1 1 on 2, then T inverse is also 1 1 on 2, and if T is linear then T inverse is also linear, है ना? तो अगर T inverse आपके पास T अगर 1 1 on 2 नहीं है, कोई एक चीज नहीं है, तो T inverse does not exist, है ना? ये भी है। T inverse जब भी एग्जिस्ट करेगा जब T आपका बाइजेक्टिव होगा, ध्यान रखना। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी हो और on 2 भी। अगर सिर्फ 1 1 है तो it will not, T inverse not exist. If it is only on 2 then T inverse also does not exist. ठीक है? Yes, sir. Then again one important result. If U and V, if U and V, U and if U and V are finite dimensional vector spaces of the same dimension, है दोनों की, then a map T from U to V is 1 1 if and only if it is on 2. ये थ्योरम है हमारी। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास UV2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है सेम डायमेंशंस के, है ना? डायमेंशन सेम है, तो अगर 1 1 है तो इट विल इम्प्लाइज ऑन टूनेस, और अगर ऑन टूनेस है तो इम्प्लाई 1 1। मतलब क्या कि अगर आपको ये मालूम चल जाए कि बोथ हैव द सेम डायमेंशन तो क्या होगा, वर्क आपका आधा हो गया। अगर आप 1 1 शो कर दें तो 1 1 इम्प्लाइज ऑन टूनेस एंड हेंस T इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों? Yes, sir. As I told you, if you want to show some map is some map has inverse, you have to show it is bijective। लेकिन अगर डायमेंशन पता है तो आप सिर्फ 1 1 शो कर दीजिए तो ऑनटूनेस उसमें इंक्लूड हो जाएगी, या ऑनटूनेस शो कर दिए तो 1 1 इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन ये जब ही होगा जब दोनों की डायमेंशन सेम है। ठीक है? प्रूफ इसका बहुत सिंपल प्रूफ है, 5 लाइन्स में इसका प्रूफ है। देखिए बोथ साइड का मैं एक साथ कर सकता हूँ। सपोज लेके चले लेट T be 1 1। ओके, तो अगर 1 1 है तो मैंने एक थ्योरम कराई थी, क्या बताइए? व्हाट अबाउट दैट थ्योरम? एक रिजल्ट है कर्नल को लेके, क्या होता है? अगर 1 1 है तो क्या होता है? कई बार करा दिया है तो नल स्पेस, व्हाट इज नल स्पेस? जीरो। जीरो करा दिया कई बार, बोला करोगे। नल स्पेस जीरो होगा अगर मैप 1 1 है तो उसके नल स्पेस में सिर्फ जीरो होगा। ओनली जीरो विल बी द एलिमेंट विच मैप्स टू जीरो, है ना? तो अगर Yes, नल sir. स्पेस में जीरो एलिमेंट है तो उसकी नलिटी क्या होगी? 0, sir. जीरो होगी। नलिटी T विल बी जीरो। ओके, अब अगर नलिटी T जीरो है तो बाय द रैंक नलिटी थ्योरम रैंक T कितनी हो जाएगी? रैंक नलिटी Dimensional. थ्योरम क्या थी? RT is equal to, U. तो अगर Dimension of U. नलिटी जीरो तो RT is equal to हाउ मच? Dimension of U. और हमें यहाँ पे क्या गिवन है? Dimension of U equal dimension of U. इसको आई कैन राइट, है ना? तो ये तो हो गया आपका बाय रैंक नलिटी थ्योरम, और ये हमें गिवन था। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब रैंक T क्या होता है? रेंज स्पेस, है ना? और डायमेंशन अगर रैंक T इक्वल है तो इसका मतलब रेंज स्पेस इक्वल है B के। इसका मतलब क्या हुआ? On to sir. T is on, है ना? ये वन साइड से प्रूफ हो गया। कन्वर्स अब चलेंगे, लेट T be on to,
अगर t is on to then RT is equal to V। RT अगर V के इक्वल है तो रेंज स्पेस किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन V के, और वो V U के इक्वल है ना। और जब ये इक्वल होगा तो Yes, sir. नलिटी जीरो, और नलिटी जीरो का मतलब नल स्पेस जीरो स्पेस। No. तो यहीं पे डबल दो साइड एरो लगा दिए, तो एक साइड से भी ट्रू है डबल, तो जब सेम स्टेप्स रिवर्स होंगे तो आई कैन यूज दिस बोथ साइड एरो। ठीक, तो Yes, इससे sir. हमें बात पता चल गई कि अगर आपके पास डायमेंशन पता होगी और सेम होगी तो सिर्फ वन वननेस शो कर दे हम तो वो अपने आप ऑन-टू-नेस इंप्लाई कर देगा, या ऑन-टू-नेस शो कर दे तो इट विल इंप्लाई वन वननेस। ओके, Yes, sir. इट विल रिड्यूस योर वर्क, यू कैन सी हियर, ये आप क्या लिख सकते हैं। So if we know the dimensions of U and V are same, then to show the existence of T inverse, है ना, we need to show only One or on one oneness or onto, not both, क्योंकि एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 4.25 पेज 125। Prove that the linear map T from V3 to V3 defined by T of E1 is equal to E1 plus E2, T of E2 is equal to E2 plus E3, and T of E3 is equal to E1 plus E2 plus E3 is non-singular and find its inverse. inverse. अब यहाँ पर आपको मैप नहीं गिवन है, क्या गिवन है, ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है, बोथ है Dimension सेम same. डायमेंशन। तो अगर नॉन सिंगुलर शो करना है तो यू हैव टू शो इट इज बाइजेक्टिव, और फॉर बाइजेक्टिवनेस के लिए यू हैव टू शो इट हैज ओनली इट इज वन वन। लेकिन पहले तो हमें मैप कंस्ट्रक्ट करना है ना। तो Yes, sir. यहाँ पर देयर आर डिफरेंट मेथड्स, यहाँ पे बहुत सारे मेथड से कर लेते। पहला मेथड क्या है कि अगर हम यहाँ पर मैप फाइंड कर लें और उसके Yes, बाद मैप की हम निकाल लें कर्नल, अगर नल स्पेस जीरो है तो वो हो जाएगा आपका वन वन एंड ऑन टू, है ना। तो मैप हम फाइंड कर सकते हैं क्या, अब मुझे मैप कंस्ट्रक्ट करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है मुझे, आई हैव एडवांटेज। Yes, sir. तो टी ऑफ x1 x2 x3 ये मुझे फाइंड करना है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जल्दी से। टी ऑफ X1 E1. ये लिख सकता हूँ क्या, है ना, क्योंकि E1 Yes, क्या है, sir. व्हाट इज E1 हियर, 100. जब स्टैंडर्ड बेसिस है तो ये आप इसे ये लिख सकते हैं, ये सॉल्व करेंगे इट विल बी कमिंग द सेम, एंड बिकॉज इट इज लीनियर सो Yes, sir. now you can put the image, कितना हो गया E1 plus E2, है ना। E1 plus E2 कितना Yes, होता sir. है बताइए जरा, 110. ये कर चुके हैं ये 110। व्हाट अबाउट T2 It 0, was 0 1 व्हाट अबाउट E3 1 1. हाँ, हाँ, E3 will be x3 1 1, 1 जब आप इसे ओपन करेंगे तो इट विल बी कमिंग दिस X1 plus X3. x1 plus x3 X3. Yes, sir. x1 plus X2 plus X3. and
x2 x1 plus plus. x2 x1, Yes, sir. ये तो x1 तो 0 x2 plus x3 है ना, Yes, sir. ये आ गया. So x2 this is your t. Now if you want to show that this is one, I have to show that null space kernel is a zero space. Now if yes, sir. p of x1 x2 x3 this equal to 0 0 0, then what will happen? x1 x1 plus plus x3 is equal to 0 0. इसका मतलब 0 0 ही है ना, वो ट्रिपल yes, sir. 1 does 2. x1 plus x2 3 0. बताइए क्या दे रहा है ये, सॉल्व करो. x2 x1 x3 यहाँ रख दिया उठा के, x1 0 आ गया, x1 0 तो x3 0, तो क्या आ रहा है? And so this implies that null space is a zero space, है ना, सिर्फ 0. This implies that t is 1 1 this implies that 1 2 yes. since ये क्यों, dimension of Dimension u is equal u to equal dimension of u. ठीक है, yes, sir. so it means t is non-singular. Non-singular inverse exists. क्योंकि t inverse यहाँ लिखेंगे, this implies that t inverse exists and this implies Yes. that t is non. ठीक है, एक हम इस तरीके से कर सकते हैं, और इसके मेथड्स और हैं, 2 मेथड और हैं उस तरीके से. यू कैन डू दैट मेथड आल्सो. वन मोर मेथड वाज देयर, इस पे दे रखे हैं बुक में, अगर आप देखेंगे. वैसे तो इट इज द इजीएस्ट मेथड व्हिच आई हैव डन, है ना, बट ये इजीएस्ट है Yes. व्हेन यू आर गिविंग स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ गिविंग. ठीक है, Yes, sir. इसके बाद कुछ और. हाँ, फिर प्रॉब्लम सेट है आपका, यू हैव प्रॉब्लम सेट. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम तो यू कैन डू, इसमें कुछ मैप्स गिवन है. फर्स्ट प्रॉब्लम यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ. इसमें कुछ मैप्स गिवन है v3 से v3 और उनकी इमेजेस गिवन है, तो यू हैव टू शो दैट व्हिच मैप, वी हैव टू चेक व्हिच मैप इज नॉन सिंगुलर, व्हिच मैप इज सिंगुलर. ठीक है, ये फर्स्ट आप अपने आप करेंगे, तो छोड़ो. सेकंड प्रॉब्लम है, show that each of the following map is non-singular. Each of the following maps is non-singular and find its inverse. This you can also try. जैसे first part है, 3 parts इसमें. A is T from B2 to B2 defined by such that alpha 1 alpha 2 are both non-zero. Yes, where alpha 1 and alpha 2 both are non-zero. ओके, तो ये आपको शो करना है नॉन सिंगुलर. तो यहाँ डायमेंशन तो 2 ही है. अब इसका अगर हम कर्नल निकालें, नल स्पेस से 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, क्या जाएगा? Yes, sir. Alpha x1 x2 must be 0. Alpha 1 x1 alpha 2 x2 is 0 0. So this implies that यहाँ कंडीशन गिवन है alpha 1 not 0. So x1 must be 0, है ना? x2 must be अगर 0. alpha 1 कंडीशन Yes, नहीं होती तो यहाँ x1 नॉन 0 आ सकता था.
बिकॉज ऑफ दिस जी। कंडीशन, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस, है ना. सो दिस इम्प्लाइज दैट null space is a zero space. This implies that what? T is 1 1 and this is means T is on 2. क्यों? डायमेंशन क्या है यहाँ पे? सेम है U और V के. So this implies that what? Yes, hello. यस सर. यार नेट जरूर डिस्कनेक्ट होता है एक बार, पता नहीं क्या है, और मुझे बीच में मोबाइल से जोड़ना पड़ता है, क्या करें. वो वाली स्लाइड चली गई, दोबारा नई स्लाइड. टाइम तो आपका चल रहा है कंटिन्यू, लेकिन वो स्लाइड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है. अब न्यू स्लाइड आएगी आपकी. चलिए, व्हाइट बोर्ड विजिबल है. यस सर. हाँ, तो उसमें क्या आ गया था? तो टी इनवर्स 1 1 सर. हाँ, तो यू गॉट अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x, है ना. ये प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है. कंटिन्यू में आ गया 126. यू गॉट टी इज नॉन सिंगुलर. अब यहाँ पर इन्वर्स अगर निकालना है आपको, देखिए यहाँ पर इन्वर्स निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, लेट टी ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू सपोज सम y1 y2, ये मान लीजिए. ओके, इसकी इमेज रख दीजिए. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट x1 x2 इज इक्वल टू टी इनवर्स T inverse y1 y1 y2. ये तो एक नॉन सिंगुलर हो ही गई है. अब इसकी व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस? इसकी इमेज क्या थी? अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2, है ना. Yes, sir. दिस इक्वल टू y1 y2. तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि टी इनवर्स y1 y2 निकालना है, तो y1 y2 की इमेज किस में आएगी? y1 y2 के टर्म्स में. So I will find Yes, x1. sir. x1 is how much? y1 upon alpha 1 and x2 Yes, will sir. be, ये मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ क्योंकि गिवन था हमें alpha 1 Alpha not 0, not 0. so I can divide by this. So this implies that ये x1 x2 था, x1 x2 की वैल्यू क्या हो गई? y1 upon. So this is the inverse map. Okay? Yes, sir. ऐसे इसका आप बी पार्ट करेंगे अपने आप, ये पार्ट. एक और पार्ट, फोर्थ प्रॉब्लम, सो दैट let T U to V be a non-singular linear transformation, then prove that T inverse of inverse is equal to T. ये प्रूव करना है. देखिए अब लेट प्रूफ देखिए इसका. तो T नॉन सिंगुलर मैप है, तो ये 1 1 on 2 होगा. दैट मीन्स टी यू जो है वो कुछ भी होगा, है ना. हर एक यू की यहाँ पर Yes, कुछ sir. इमेज भी मिलेगी क्योंकि 1 1 on 2 है, और ये इनवर्स भी है. तो आई कैन राइट यू इज इक्वल टू T टी inverse इनवर्स, V. है ना. अब दिस implies that अब u is equal to t inverse b. Now because t is non-singular, so t inverse is Yes. also non-singular. Since Yes. t inverse is also non-singular, that means 1 1 on 2. Yes. तो ये जो आपके पास t inverse मैप होगा, t inverse कहाँ से कहाँ होगा? b to
U है ना। U. अब ये एलिमेंट आपका T इनवर्स जो है यहाँ इसका एलिमेंट, तो अब अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो आई कैन राइट Yes, sir. T इनवर्स ऑफ इनवर्स। इसका अगर आप इनवर्स लोगे तो क्या लिखोगे, T इनवर्स ऑफ U इनवर्स, to और ये V. कहाँ से कहाँ होगा, U. U to U V। से V. तो T इनवर्स को अगर अगेन आई एम कंसीडरिंग सम मैप, सपोज सम G, तो क्या होगा इसका इनवर्स, दिस आई कैन राइट U इज इक्वल टू V, है ना। तो इसको इनवर्स यहाँ ले Yes, गए sir. तो T इनवर्स का इनवर्स U इज इक्वल टू V। इसे मैं यहाँ क्यों ले सकता हूँ, बिकॉज T इनवर्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर, तो द इनवर्स ऑफ दिस T इनवर्स अगेन एग्जिस्ट। और V कितना था, V तो TU था, Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज दैट, अब ये U है, इसका मतलब क्या हुआ, T इनवर्स ऑफ इनवर्स इज, तो यहाँ पे हमने यूज करा बाइजेक्टिवनेस ऑफ T, here I use the bijectiveness of T इनवर्स। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब इसको आगे फिफ्थ में ट्रू फॉल्स है, वहां वाला आप ट्राई कीजिएगा, इस पे तो रीस सिलेबस, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कोई प्रॉब्लम है, एवरी लीनियर मैप फ्रॉम B3 टू V2 हैज एन इनवर्स, ट्रू है या फॉल्स है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रू फॉल्स में, एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम B3 टू V2 हैज एन इनवर्स, क्या ये बात ट्रू है, बताइए। एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 नहीं होगी. है, बताओ। 1 नहीं होगी. 1 1 नहीं होगा यहाँ पे, देखिए No, sir. B3 से V2 है ना, तो B3 से V2 Yes, का मतलब यहाँ पर ऑन टू नेस तो हो सकती है रेंज इसके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाएं रैंक नलिटी थ्योरम, देखो इसमें रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, RT प्लस NT इज इक्वल टू कितना 3, Yes, sir. है ना। अब RT मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम RT इज अ 2, sir. सबस्पेस ऑफ V2, तो अगर ये मैक्सिमम 2 ले लें आप, तो NT कितना होगा 1. है ना। NT कैन नॉट बी जीरो, यहाँ NT कभी जीरो हो सकता है बाय No, दिस, sir. है ना, क्योंकि No, बिकॉज नहीं ऑफ हो दिस इफ यू विल टेक, तो NT विल बी 1, है ना, तो NT विल नेवर जीरो, अगर NT नेवर जीरो तो मैप इज नेवर 1 1, 1. इट इज नेवर 1 1, इट इज नॉट नॉन सिंगुलर, है ना। Single. तो इससे आप देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट नॉन सिंगुलर, तो इट इज फॉल्स। ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इसमें हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट स्पेस Yes, वी sir. हैव, next topic we have the space LUV. Next topic we have 4.6, the space। इसे स्पेस क्यों कह रहे हैं, ये एक अलग स्पेस बनाएगा, उसको हम बोलते हैं L of UV। L of UV का मतलब क्या हुआ, all the linear transformations from U to V, ठीक है, सेट ऑफ, अगर आपके पास ये U है ये V है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बहुत सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, एक को या एक कोई, बहुत सारे मैप बना सकते हैं हम, है ना। Yes, sir. तो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम U to V, दिस विल अगेन फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, उसे हम स्पेस बोल रहे हैं, तो इसे हम डिनोट करते हैं LUV से। L का मतलब ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, U मींस डोमेन, V मींस कोडोमेन, तो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। वेक्टर स्पेस का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक सेट है, तो अगर आप कोई भी S of T बिलोंग्स टू L of UV लेंगे, UV, तो व्हाट विल हैपन, S plus T belongs to L of UV and alpha S belongs Alpha. to L of UV, ठीक है, ये होगा, ये तो डेफिनेशन होती है वेक्टर स्पेस शो करने के लिए, सम एंड स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी करेक्शन यानी कि LUV जो सेट है, इसमें क्या आएंगे, ऑल द लीनियर मैप्स फ्रॉम U to V. तब अगर ये वेक्टर, आई विल शो कि इट्स अ वेक्टर स्पेस, तो आई विल शो कि दिस हैज जीरो मैप, इट हैज इनवर्स मैप, एडिटिव इनवर्स मैप, है ना,
and rest of the properties of vector space holds here. This I will show in the next lecture. Okay, how to define sum of two linear map, how to define scalar multiple of a linear map, and this is again linear, so it belongs in the set. चलिए इसे कल कंटिन्यू करेंगे हम. ओके Okay, sir. चलिए कल कोई मीटिंग नहीं है फिलहाल तो आई विल टेक योर क्लास एट योर फिक्स टाइम 12:35. ओके Okay, sir.